Good morning to all my dear students. I hope you all are well and your study is also going on well. So that now we will study today's chapter Foods, part 3rd, as we were reading about the story of the two children whose thinking, they both were thinking the long spell word is very hard to pronounce, but in really they came to know the word no is very hard to say. So it's very hard to pronounce because how see देखिए वो कैसे a teacher had heard the noise and was coming to call the boys from the ice just as they broke through. A teacher had heard listen the noise of the boys who were making the fun and enjoying the games on the ice sheet and just broken off the ice sheet and was coming to call the boys from the ice. He was coming to them to call them from the ice sheet. वो वहाँ उस फ्रोज़न पॉन्ड से उन्हें बुलाने के लिए आता है, उन्हें कॉल करने के लिए बस बट just as they broke through, but suddenly that ice sheet broke. Suddenly वो ice sheet टूट जाती है and the teacher tore some boards from a fence close by the showed them and them out on the ice until they came within reach of the boys in the water. When the teacher was coming towards them, जब टीचर उनके पास आ रहा होता है, he came to know about the, he listened, he heard that the ice sheet was broken. वो देखता है उसी समय कि वो ice sheet टूट जाती है. Then he took a very good step. वो एक बहुत अच्छा डिसीजन लेता है, एक बहुत अच्छा काम करता है. He tore some boards. वो कुछ जो he tore तोड़ना he tore some boards from the fence close by and showed them out on the ice until they came within the reach of the boys in the water. He took some wooden boards. He took some wooden boards. He tore some wooden boards from the fence यानी lines of the wood. Wooden lines में से कुछ boards लेकर आता है and showed them towards the boys and it gave to the boys who was inside the icy water on the ice and until they came within the reach of the boys in the water and he made them some effort to save the life of the children who fell down inside the स्नोइंग वाटर. जो ठंडे पानी में जो स्नो वाटर में गिर जाते हैं उन्हें वो प्रोवाइड करवाता है कुछ लकड़ियाँ, कुछ बोर्ड्स, कुछ वुडन फैंस ताकि दे कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस दिस wooden sheet and came within the reach of the boys in the water and it came in the reach of the boys who were in the water. After a while he succeeded in getting these three boys out of the water. After that he became the success to get these three boys out of the water, but not until they were almost frozen, but not they saved the life. He make out from the cold water these three boys, but until they were almost frozen, but they become very cold. लेकिन उन्हें काफ़ी ठंड हो चुकी थी, वो काफ़ी ठंडे हो चुके थे. Become very cold. And George's father and mother were very much troubled when he was brought home. The parents of the George become very tensionized and very worried about their child because he was when he brought to the home. जब उसे घर लाया गया, his parents become very much worried about him. वो उनके लिए बहुत ज़्यादा worried हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जिसे कहें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. And they learned how narrowly he had escaped drowning and they came to know about that how difficultly he had escaped from drowning यानी डूबते हुए कितनी मुश्किल से उसे डूबने से बचाया है. But they were so glad to know that he was safe. But उन्हें खुशी थी ये जानकर कि वो safe है. And they did not ask him any questions until he was warm and comfortable again. And they were not asking any question from him. वो जब तक उसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे until he was again be comfortable, जब तक कि वो फिर से comfortable condition में ना हो जाए. But in the evening, when they were all gathered together about the cheerful fire, his father asked him how he came to disobey his positive instruction. But they were waiting
to be the condition, to be the good condition of your child, that they can ask the question how he may disobey his instructions. वो वेट कर रहे थे कि कब जॉर्ज की तबीयत ठीक होगी और कब हम कुछ उससे पूछ पाएंगे, बिकॉज द पेरेंट्स बिकम वेरी मच वरीड अबाउट देयर चाइल्ड, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा उसके लिए केयरिंग थे. एंड इन द इवनिंग, और जब शाम को, when they were all gathered, जब वो सभी कलेक्ट हुए, gathered हुए टुगेदर साथ साथ, about the cheerful fire, when they were gathered around the fire to take the warmness from the fire, अपने आप को वार्म रखने के लिए, जब वो फायर के चारों तरफ गैदर्ड टुगेदरली, सिटिंग टुगेदरली, जब वो साथ साथ बैठे थे, हिज फादर आस्क्ड हिम, तो उनके फादर उनसे पूछते हैं हाउ ही केम टू डिसोबे हिज पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस, वो उनकी इंस्ट्रक्शन, उनकी सलाह को उन्होंने क्यों डिसोबे किया. डिसोबे यानी कहना नहीं मानना या उन्हें फॉलो नहीं करना. वाई ही डिडेंट फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन, उसने उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो क्यों नहीं किया, उसने उनका कहना क्यों नहीं माना. जॉर्ज आंसर दैट ही डिडेंट वांट टू गो ऑन द आइस, जॉर्ज बताता है, वो उन्हें आंसर देता है, जॉर्ज आंसर वो उन्हें बतलाता है दैट ही डिडेंट वांट गो ऑन द आइस, वो उस आइस पर नहीं जाना चाहता था. बट द बॉयज़ मेड हिम, लेकिन वहाँ उसके फ्रेंड्स ने, उन क्लासमेट्स ने, उन बॉयज़ ने उसके साथ ऐसा किया. हाउ डिड दे मेक यू, क्या उन्होंने कैसे तुम्हें प्रिपेयर किया टू गो ऑन द आइस, उस आइस पे जाने के लिए. आज फादर डिड दे टेक होल्ड ऑफ यू, क्या उन्होंने तुम्हें उठाया, एंड ड्रैग ऑन यू, क्या तुम्हें उन्हें वहाँ पे डाल दिया. आस्क्ड हिज फादर, उनके फादर ने कहा क्या वो तुम्हें उठाकर उस आइस पर लेकर गए थे. आस्क्ड हिज फादर, उनके फादर ने, जॉर्ज के फादर ने उनसे पूछा. नो, जॉर्ज रिप्लाइड, बट दे ऑल वांटेड मी टू गो, लेकिन वो सभी चाहते थे कि मैं वहाँ जाऊँ. हाउ, व्हेन दे आस्क्ड यू, जब उन्होंने तुमसे पूछा, व्हाई डिडंट यू से नो, तब तुमने ना क्यों नहीं कहा. नाउ कम ऑन द पॉइंट. व्हाट वर्ड इज़ वेरी हार्ड टू स्पीक, कौन सा वर्ड कहने में बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. व्हेन दे आस्क्ड यू, जब उन्होंने तुमसे पूछा, व्हाई डिडंट यू से नो, तब तुमने ना नो क्यों नहीं कहा. आई वॉज गोइंग टू डू सो, मैं वही करने जा रहा था. बट दे कॉल मी कॉवर्ड एंड सैड आई वॉज अफ्रेड टू गो. आई वॉज गोइंग टू डू सो, मैं वही कहने जा रहा था. बट दे कॉल मी कॉवर्ड, लेकिन उन्होंने मुझे एक डरपोक समझा. दे कॉल मी ए कॉवर्ड, उन्होंने मुझे डरपोक कह के बुलाया. एंड सैड, और कहा, आई एम अफ्रेड टू गो, कि मुझे डर लगता है वहाँ जाने से. एंड आई कुडंट स्टैंड दैट, तो मैं वहाँ अधिक नहीं रुक सका. एंड रैन टुवर्ड्स द आइस, और आइस पर दौड़ गया. एंड सो सेड हिज फादर, एंड सो, अब जाना, सेड हिज फादर, उसके फादर ने कहा, यू फाउंड इट ईजियर टू डू सो बी मी एंड रन द रिस्क ऑफ द लॉसिंग योर लाइफ. एंड हिज फादर सेड, यू फाउंड इट ईजियर टू डिसोबे मी, क्या तुम्हें मुझे डिसोबे करना इतना आसान लगा. एंड रन द रिस्क ऑफ लॉसिंग योर लाइफ, और तुम अपनी जान पर, यू आर गोइंग टू लॉसिंग, तुम्हें पता है तुम अपनी जान को खतरे में, अपनी लाइफ को ख़त्म कर देते, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा डेंजर में डालने के लिए तुम इतनी जल्दी रेडी हो गए, तुम तैयार हो गए. द रिस्क ऑफ लॉसिंग योर लाइफ, यू आर वेरी एंग्रीली टेकिंग द रिस्क ऑफ लॉसिंग योर लाइफ, क्या तुम्हें अपने जीवन को खतरे में डालना इतना आसान लगता है. देन टू सी दैट लिटिल वर्ड यू थॉट सो ईजी लास्ट नाइट, तो तुम्हें वो लिटिल वर्ड यूज़ करना चाहिए था जिसे तुम बहुत आसान समझ रहे थे लास्ट नाइट. देन टू से, तो तुम्हें कहना चाहिए था दैट लिटिल वर्ड, वो छोटा सा वर्ड, यू थॉट, जो कि तुमने सोचा था, सो ईजी, कि ये तो बहुत आसान है, जिसे तुम लास्ट नाइट बहुत ईजी समझ रहे थे. यू कुडंट से नो, क्या तुमसे नो नहीं कहा गया. जॉर्ज नाउ बिगन टू सी वाई दिस लिटिल वर्ड, जॉर्ज now begin to see why this little word no was so hard to pronounce. अब जॉर्ज ये देखना, अब जॉर्ज ने ये देखा, जॉर्ज now began to see, अब जॉर्ज ने ये देखा why this small word no was hard to pronounce. अब उसे समझ में आया कि ये इतना छोटा सा स्मॉल वर्ड नो प्रोनाउंस करना कितना हार्ड है, कितना टफ है. It was not because it was so long or composed of such difficult sound. It was not very hard. It was not, ये इसलिए नहीं
क्योंकि ये बहुत लंबा और इसकी जो साउंड है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, composed of such difficult sounds. It is made of very difficult sound. It's not very hard to pronounce it, but because it often requires so much real courage to say it. But really, we have to collect a great courage to say no. But बिकॉज जनरली इट रिक्वायर्स बहुत ज़्यादा साहस की ज़रूरत होती है, रियल करेज टू से इट, इसे बोलने के लिए बहुत ज़्यादा साहस की ज़रूरत होती है, टू से नो, ना कहने के लिए, वैन वन इज़ टेम्पर्ड टू डू रॉन्ग, और तब जब कोई आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए टेम्पेट करता है या इंसिस्ट करता है. आफ्टर दैट, आखिरकार, वेन एवर जॉर्ज वॉज टेम्पटेड टू डू रॉन्ग, और जब वो कुछ गलत करने जा रहा था, ही रिमेंबर्ड हिज नैरो एस्केप फ्रॉम द ड्राउनिंग, और जब भी वो कुछ गलत देखता या कुछ भी गलत करने के लिए उसको रेडी किया जाता, ही रिमेंबर, तो उसे याद आ जाता था हिज नैरो एस्केप फ्रॉम द ड्राउनिंग, कि कितनी मुश्किल से, इट्स वेरी डिफ़िकल्टली सेव हिज लाइफ, कितनी मुश्किलों से उसका जीवन बचा था. एंड ही लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ द लिटिल वर्ड नो, अब वो जान गया था एक छोटे से वर्ड, टू syllable वर्ड्स नो की इम्पोर्टेंस. एंड द ऑफनर ही सैड इट, और अब जनरल वो इसे यूज़ करता था, द ईजियर इट बिकेम, उसके लिए ये आसान हो गया था. एंड इन टाइम ही कुड से इट, और अब वो समय से इसे यूज़ कर लेता था, वैन नेसेसरी विदाउट मच एफोर्ट, जब भी इसकी आवश्यकता होती, बिना अधिक परेशान हुए, बिना अधिक प्रयास किए, ही वॉज यूजिंग दिस वर्ड नो. Now he came to know about the real importance of a little word no. What's need, how much it's difficult to speak, to pronounce, because it's just want a real courage to say it. So, understand this chapter very well. I hope you all are understand it very well. The chapter and also the value of the two syllable word no. Okay? Thank you.